मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह की। May God's name be glorified. प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। And I want to greet each one of you very lovingly in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. और मैं आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रेम पूर्वकता से प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन करना चाहता हूं। I thank God for this opportunity because it is an opportunity to meet some of my family members. और एक बार फिर से आप सबके साथ मिलकर के और खास तौर से इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आज बहुत से परिवारों के साथ में जो मेरे फैमिली के लोग हमसे मिलकर के ये अवसर मिला, इसलिए धन्यवाद। All of us are children of one Father. क्योंकि हम सब एक ही पिता के संतान हैं, So we are a family. इसलिए हम एक परिवार के लोग हैं। And we are all redeemed by the blood of our Lord Jesus. और हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा छुटकारा पाए हुए हैं। So we have a blood relationship. इसलिए हमारा जो खून का रिश्ता है एक दूसरे से। So I thank God for this opportunity and grateful to Deepu for inviting me. और मैं एक बार फिर से इस अवसर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। Uh, I know most of you do not know me and I do not know you. So my name is Abraham Daniel Thomas and I serve the Lord along with my family and along with the assembly in Bangalore. और मेरा नाम अब्राहम डैनियल थॉमस है और मैं बेंगलुरु में लेकर के कलेसिया में और परिवार के साथ प्रभु की सेवा में हूँ। And we are also a small church. और वहाँ पर भी हमारा एक छोटा सा कलेसिया भवन है। And I am used to speaking to even smaller group of people. और यद्यपि मैं इससे भी छोटे लोगों का समूह के बीच में मैं बताता था, सिखाता था। Because Brother Devu was telling that this is a small gathering. था कि ये छोटा सा समूह है। Yeah, I was informed of this meeting only yesterday, so I did not get much time to pray and prepare. और मेरे पास जब जैसे मुझे कहा गया था तो मेरे पास इतना ज्यादा तैयारी के करने के लिए समय उतना नहीं मिला। So I request your prayers as we study the Word of God. इसलिए मैं आप लोगों की प्रार्थनाओं की उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से हम प्रभु का वचन सीखते हैं। And also, we are going to study some very fundamental, uh, essential knowledge that we need to have in our Christian life. और हमें ये बात बहुत जरूरी है मसीह होने के नाते कि सैद्धांतिक शिक्षा हमें मिले। So it may not be very, interesting if you are not very attentive. और इसलिए अगर मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, अगर आप लोग सचेत होकर के प्रभु का वचन को नहीं सीखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको जो है इस अध्ययन उतना रुचिपूर्वक नहीं लगेगा। But I will guarantee you that if you listen carefully, this knowledge will help you in your everyday Christian life in all areas of life. और हम लोग देखते हैं कि कई प्रकार के I'm sorry, we'll have to pray for this mess because at present now the fight is going to happen in front of my house. That problem that I have shared with you. So my vehicle is also outside. So my brother in-law, he has come. He was outside, so he came just now telling that the fight is going to happen. So we have to be careful for the vehicle. We have to take it away from this area. So since I'm doing translation, so it is difficult. Let us continue. Thank you. Okay, we'll be praying. Yeah, as announced, we will be looking at Romans chapter 5. जिस प्रकार से हमको बताया गया है कि हम लोग रोमियो की पत्री से अध्ययन करने वाले हैं। And let me share my screen.
यस, और मैं अपने स्क्रीन को आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। और ये स्क्रीन आप सबके लिए दिख रही होगी ना, विजिबल है, सबको सब देख सकते हैं? यस Yes. यस, ये लोग देख ओके, रहे यस। Thank you. We will be looking at the first two verses of Romans chapter 5. और आज हम लोग मनन के लिए रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 और दूसरे आयत को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। I think in the bulletin that was sent, it was written chapter 5, verse 1 to 3, but we will look at the first two verses to start लेकिन with. जो जूम का जो लिंक आपको भेजा गया था, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया था कि रोमियो उसका 5 अध्याय 1 से 3 तक, लेकिन वास्तविक रूप से हम लोग 5 अध्याय 1 से 2 तक ही अध्ययन मनन करने वाले हैं। Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. और सो अब जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। You may be familiar with these two verses. मैं समझता हूं कि आप लोग इन वचनों से भली भांति परिचित होंगे, but we want to look at these verses a little more closely and little more deeply. लेकिन हम लोग आज के मनन के लिए हम लोग जो है इन वचनों पर विस्तार रूप से और गहराई रूप से जाकर के उनकी सच्चाई को जानने वाले हैं। The first thing that we observe in this is that Apostle Paul is not instructing anything here. और सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर कुछ भी ऐसा निर्देश नहीं दे रहे हैं, But he is making some assertions or he is making some statements. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि बावजूद इसके प्रेरित पौलुस कुछ घोषणा करते हैं। And in that he makes three statements. और इसके दरमियान हम लोग देखते हैं कि इस भाग में वो 3 ऐसे घोषणा करते हैं। One, we have peace with God. सबसे पहला है उनमें से है हमें परमेश्वर के साथ मेल है। Secondly, we have access into this grace. दूसरा है उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच हुई है। And in Hindi, it is translated as anugraha, but it is in English, it is grace, or I think the equivalent word in Hindi is kripa. और यह हिंदी में जो है अनुग्रह शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वास्तविक जो उसका मूल अर्थ है कृपा। And thirdly, Apostle Paul states that we have this joy, or we rejoice in the hope of the glory of God. और तीसरी बात प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस बात के विषय में कहते हैं, और वो है परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। So let's get this. There are three statements he makes, and he says that these are the things that we have. और यहाँ पर हम इस बात को कह सकते हैं कि प्रेरित पौलुस इस प्रकार की घोषणा करते हुए 3 मुख्य बिंदुओं के ऊपर वो प्रकाश डालते हैं और कहते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ मेल है, और अनुग्रह और कृपा जिस पे हम बने रहते हैं, और तीसरी बात परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करते हैं। And when we study, we also learn, we have peace with God and these three things. और जब हम उन बातों को अध्ययन करते हैं तो पहला है जैसे कि हमें परमेश्वर के साथ मेल या फिर शांति मिलती है, Which means regardless of what our past was, whatever sins we have committed, whatever situations we had, now we have peace with God, which means everything in our past is taken care of. और जो शांति या मेल प्रभु के साथ हमारा है, ये बात इस बात को दर्शाती है कि हमारा जो पिछला और बीता हुआ कल में जो भी पाप, गलती, अधर्म और अधर्मिकता के कार्य हमसे हुए हैं, उन सब को परमेश्वर ने दूर करके हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से कराया है।
Today we have peace with God. और आज इसलिए हमें परमेश्वर के साथ वर्तमान में मेल होने के कारण उसके साथ शांति मिलती है। Before that, we had enmity with God. उससे पहले हम परमेश्वर के साथ में हम उसके शत्रु व दुश्मन थे। Apostle Paul does not say that we have peace within us or we have peace with others, but we have peace with the most important being, that is with God. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो कहते हैं कि हमारा मेल या शांति किसी अरे गहरे या असाधारण या साधारण व्यक्ति के साथ में, व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, ना ही व्यक्ति विशेष वस्तु के साथ, लेकिन हमारा जो मेल और शांति जो हुई है वो स्वयं परमेश्वर व सृष्टिकर्ता के साथ है। Only a person who has peace with God can have peace within him oneself and can have peace with others and other situations. और इसलिए जिस व्यक्ति के पास में केवल और केवल जब तक परमेश्वर के साथ मेल नहीं हुआ या जब तक किसी व्यक्ति का मेल परमेश्वर से होता है, केवल वही व्यक्ति उसके अंतर आत्मा में सुकून और शांति का अनुभव कर सकता है। So our past is taken care of and we have peace with God. इसलिए हमारा जो पिछला जो समय था, पिछला जो कार्य था और जो अशांति का कार्य था, वो सब कुछ हटा दिया गया है, दूर कर दिया गया है, और अभी वर्तमान में परमेश्वर के साथ हमारा शांति और मेल है। And secondly, we have grace, or we have access into the grace. और दूसरा हम लोग जो कहते हैं वो है उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच हुई है। We will study what that grace is later on. हम बाद में इस अनुग्रह का मतलब क्या है, कृपा का मतलब क्या है, बाद में इसका अध्ययन करेंगे। But for the time being, let me put it this way, we have all that we need to live in this world. We have all the provisions to live in this world now. और हम इस प्रकार से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसका मतलब है कि अभी हमें जिन सब चीजों की जरूरत है उन सब की बहुतायत और उन सब की भरपूरी परमेश्वर की ओर से हमें मिली है। And with regard to our future, we have a hope, and that hope is the glory of God. और उसकी तीसरी बात जिसकी बार हम लोग मनन कर रहे हैं वो है हम परमेश्वर की महिमा की आशा पर क्या घमंड करते हैं। So we being children of God, our past, present, and future is taken care of. इसलिए हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमारा बीता हुआ काल, हमारा वर्तमान का काल और हमारा भविष्य का काल, उन सब को परमेश्वर ने अपनी ओर ले लिया है, अपनी ओर कर लिया है, उसके परमेश्वर उसका रख रखवाली करते हैं। So we should not worry about our past. इसलिए हमें अपने बीता हुआ काल की चिंता नहीं करना है। We should not be troubled with our present. और हम वर्तमान के समय में भी हमें हियाब नहीं बांधना, घबराना नहीं है। And we should not be afraid of our future. और आने वाले कल से भी हमें नहीं डरना है। Now, when Apostle makes his statement, he says we have peace. और जब प्रेरित पौलुस बात को कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ शांति है, मतलब वो एक वचन इस्तेमाल नहीं करता है, वी मतलब हम, मतलब एक समूहवाचक बहुत से लोगों को वो उसमें इंक्लूड करता है। So when Apostle Paul writes we, what did he mean? Who all are this we? और जब प्रेरित पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर के साथ शांति या मेल है, तो वो हम कौन कौन है, किस किस के विषय में प्रेरित पौलुस कह रहे हैं? Apostle Paul wrote this letter to the beloved of God who are called to be saints. और प्रेरित पौलुस ने इस पत्र को उनके लिए लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। And he wrote that letter to the saints at Rome, but today God has given this as the word of God, so we are also included in that we. और इसलिए उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उसी प्रकार से हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने हम उसके प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए, इसीलिए हम उन सब के नाम जो शब्द है उसमें हमारा भी नाम आ जाता है, हम भी उसमें मिल जाते हैं।
So all these three privileges are not only theirs, but our privileges too: peace, grace, and hope. और इसलिए मेरे प्यारो ये जो अवसर हमें मिले हैं, मौका हमें मिला है, ये केवल और केवल उन लोगों के लिए ही नहीं जो रोम में रहने वाले जो प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए थे, वरन वो सब सब हमारे लिए भी हैं। And we know who wrote, how did we get it? It is written, having been justified by faith and through our Lord Jesus Christ. और हम इस बात को भी देखते हैं कि ये सब बातें हमें कैसे मिली हैं। ये हमें मिली हैं, हम प्रभु कैसे मिले? विश्वास से धर्मी ठहरने के द्वारा, अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। So it means that the peace with God, access into this grace, and hope of the glory of God is given to us because of Lord Jesus Christ. इसलिए हम कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मेल होकर के और हम अनुग्रह के द्वारा हमें जो है आने वाले भविष्य में जो हमें एक आशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है। Which means it is not because of our ability or our worthiness, but because of Lord Jesus Christ. और इसलिए इसका मतलब है कि ये हमारी योग्यता और क्षमता के अनुसार नहीं है जिसके हम योग्य थे उसके लायक, वरन ये सब कुछ प्रभु का अनुग्रह और दया है। So regardless of our background or our past life, these are all given to us because of Lord Jesus Christ. और हमारे बीते हुए कल के और उसकी परिस्थिति के अनुसार हमारा कैसा स्वभाव था, उन सब के बावजूद भी हम देखते हैं वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये सब आशीष मिली है। And it says that it is by being justified by faith. और वो इस प्रकार से कहा गया है कि विश्वास से धर्मी ठहरने के द्वारा। You know, the book of Romans is all about the gospel of Jesus Christ. और इस बात को हम सभी लोग जानते हैं कि रोमियो का पत्र पूरा का पूरा प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से भरपूर है। See, we have 4 gospel accounts: Matthew, Mark, Luke, and John. हम सभी लोग जानते हैं कि हमें बाइबल में 4 सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना देखने को मिलते हैं। But those are the historical records of the life and death and burial and resurrection of Jesus. और उन सब में जो है देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म और जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। But the one book that explains the gospel clearly is the book of Romans. लेकिन वास्तविक रूप में सुसमाचार को विस्तार रूप से साफ साफ जो दर्शाता है और प्रकट करता है वो है रोमियो का पत्री। Sometimes we think about the gospel meaning gospel is for the unbelievers. कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सुसमाचार केवल अविश्वासियों के लिए ही है। But Apostle Paul wrote this letter to believers. लेकिन प्रेरित पौलुस ने ये पत्र किसके लिए लिखा? विश्वासियों के लिए लिखा। Which means we need to know the gospel clearly, although we have already believed. और इसका मतलब है कि ये पत्र उनके लिए लिखा है जिन्होंने पहले से ही विश्वास कर लिया है। Because gospel is not only to believe but also to live. और इसका मतलब है कि सुसमाचार के ना केवल विश्वास करने के लिए ही है, वरन हमें सुसमाचार के अनुसार सुसमाचार के लिए जीवन जीना है। So even though it is a little difficult to understand everything that is written or even what I'm explaining, it is extremely important that we understand gospel clearly. और जो कुछ भी लिखा है और जिसको मैं अभी व्याख्या कर रहा हूँ वो इस बात के विषय में है, वो बड़ी साफ साफ रीति से पुस्तक में लिखा हुआ है। Apostle Paul begins this letter by explaining what gospel is. और प्रेरित पौलुस इस बात को जब आरंभ करते हैं तो वो इस बात को बताते हैं कि सुसमाचार वास्तविक रूप में है क्या। Brother, if you can read Hindi. मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के
विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। First of all, Apostle Paul introduces himself as one who is separated to the gospel. सबसे पहला प्रेरित पौलुस अपने आप को इस प्रकार से परिचय दे रहा है कि वो प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। And then he makes some important statements about the gospel. और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सुसमाचार के विषय में कुछ मुख्य बातों के विषय, मुख्य बिंदुओं पर वो उल्लेख करता है। First of all, he says that it is a gospel of God. सबसे पहली बात वो कहता है कि ये सुसमाचार परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का है। Which means that this gospel did not originate in man's understanding or idea, but it is the source of this gospel is God. और इसका मतलब ये है कि ये जो सुसमाचार है वो मनुष्य के मनगढ़ंत कल्पना नहीं है और कहानी नहीं है, वरन ये परमेश्वर का है। And secondly, Apostle Paul said that this is already something that God has already promised. और दूसरा वो कहता है कि जिसकी उसने पहले से ही, परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रतिज्ञा की थी। Gospel is not an afterthought in the mind of God, but gospel was always there in the mind of God. God promised before itself. और इसलिए ये जो सुसमाचार है वो मनुष्य की मनों की कल्पना नहीं है, मनों के जो है विचार नहीं है, वरन सुसमाचार को विषय परमेश्वर ने पहले से ही अपने मन में योजना बना लिया था और उसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में हम तक पहुंचाया। Or let me put it this way, gospel is not the plan B of God, but it was God's plan from the very beginning that God wanted to give us this gospel. और इसलिए मैं आपको इस प्रकार से बताना चाहता हूं कि सुसमाचार परमेश्वर का एक अनुकल्पीय योजना नहीं है, वरन ये प्राथमिक परमेश्वर की योजना है, जिसको उसने उत्पत्ति के पहले से ही उसको अपने मन में ठान लिया था, योजना बना लिया था। And the third thing is, Apostle Paul says that it is recorded in the Holy Scripture. और तीसरी बात वो कहते हैं कि ये बात जो है परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में, पवित्र वचन में लिखी गई है। Which means we can check what is the true gospel, and we can read the Holy Scripture and determine what is the right gospel and what is the false gospel. इसका मतलब है कि हम इसका प्रमाण पाने के लिए कि वास्तविक रूप में सुसमाचार सत्य है कि नहीं है, इसकी बुनियाद कहाँ से मिलती है, जिसके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में, परमेश्वर के जीवित वचन में इसकी बुनियाद हमें मिलती है, जिससे हम तुलना कर सकते हैं कि ये सच है या झूठ है। Scripture means it's a written document. What gospel is already written, so we cannot improvise or improve or make changes to that. और इसलिए मेरे प्यारो, ये जो सुसमाचार है ये एक कहानी कथा नहीं है, वरन ये परमेश्वर के वचन में लिखी गई बातें हैं। और इसका मतलब है कि हम उनमें ना तो कुछ जोड़ सकते, ना ही मिला सकते, ना ही कोई कहानी बना सकते हैं। And the fourth thing is, Apostle Paul says, what is gospel about, or what is the content of the gospel? और उसके बाद में प्रेरित पौलुस इस बात को, चौथी बात वो सब बताते हैं, सिद्ध करते हैं कि वास्तविक रूप में सुसमाचार है क्या। And it is a person, and person's name is Jesus Christ. और वो कहते हैं कि सुसमाचार हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। So gospel is not some ideas or ideology, but gospel is about a person. और इसलिए सुसमाचार जो है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया कोई योजना नहीं है, वरन ये परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया दिया गया है। So when we believe in the gospel, we believe in the person of Jesus Christ. इसलिए जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र, उस पर विश्वास करते हैं। Which means that the most important thing that we believe is to who Jesus is. और मैं समझता हूँ कि सबसे मुख्य बात जो हम विश्वास करते हैं सुसमाचार में, वो ये है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह है कौन।
And Jesus himself, while he was in this world, he asked his disciple, "Who do people think that I am?" और यद्यपि प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर थे, अपने चेलों के साथ वो इस सवाल को पूछते थे कि वास्तविक रूप में लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। They had different opinions. और उनके शिष्यों के पास अलग अलग जवाब और अलग अलग उनकी एक जवाब उनको मिला यीशु को। Then Jesus asked disciple, who do you think that I am? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं लोगों की चिंता नहीं करता कि वो क्या कहते हैं मेरे बारे में, लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। And then Apostle Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." लेकिन उन चेलों में से हम देखते सबसे पहले जवाब पतरस ने दिया और वो कहता है कि तू ही वो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And Jesus said, "It is on this rock that I will build my church." और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उससे प्रतिज्ञा करते हैं कि यही वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। So we are also small stones. When we believe and confess who Jesus is, we are also being built up. इसलिए मेरे प्यारो, हम भी वो छोटे छोटे पत्थर हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तब हम जो है उस प्रभु यीशु को जो है मानो वो हमारे ऊपर जो छोटे पत्थरों पर अपनी कलीसिया को खड़ी करता है। And the most beautiful thing about this is, as Apostle Jesus tells Peter, "It is not the flesh and blood that revealed this to you, but my Father in heaven." और वो कहते हैं कि ये बातें जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो मेरी ओर से नहीं है, वरन वो उस परमेश्वर की ओर से जो स्वर्ग में बैठा है उसकी ओर से है। We came to this knowledge as to who Jesus is because God the Father revealed that to us. और हम इस बात के विषय में तब पता चलता है जब हम जान पाते हैं कि वास्तविक रूप में जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में पिता कौन है। We did not investigate and came to this understanding, but God revealed this to us. और हमने इस बात के विषय में चर्चा नहीं की, ना ही खोजबीन की, ना जांच पड़ताल किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कौन परमेश्वर है हमारे सामने प्रकट किया है। And Apostle Paul here says two things about Jesus Christ. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस दो बातें यीशु मसीह के विषय में कहते हैं। One about his humanity, that he was born of the seed of David according to the flesh. पहला वो कहते हैं उसकी मानवता के विषय में, वो कहते हैं कि वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। And the second is that he was declared that he is indeed the Son of God when he was resurrected. और दूसरी बात वो कहते हैं और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। So these are the two important knowledge that we need to have about Jesus Christ, because gospel is about Jesus Christ. और इसलिए यही वो दो मुख्य बातें हैं जिनको हमें अपने मन में विश्वास करना है और जिनको मन में रखना है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो परमेश्वर का पुत्र है और वो सुसमाचार उसी के विषय में है। He is both the Son of Man and he is and Son of God. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह वो दोनों किरदार को, दोनों स्वरूप उनके हैं। वो एक तरफ तो परमेश्वर का पुत्र हैं पूरी तरह से, दूसरी तरफ वो पूरी तरह से मनुष्य के पुत्र भी हैं। These are very basic that we need to know. First of all, the source of the gospel is God. यही वो बुनियादी बातें हैं जिनको हमें सबसे पहले बड़ी साफ रीति से उनको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से वो मनुष्य के पुत्र हैं। No. The first thing is the source of the gospel is God. सॉरी। और सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि सुसमाचार का जो स्रोत है वो परमेश्वर का वचन है। Every other religion originated from man, but gospel originated from God. संसार के बाकी सर्व धर्म मनुष्यों की कल्पना से निकल करके आए हैं, लेकिन सुसमाचार ही एक ऐसा है जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र व वचन के अनुसार वचन से निकल करके आता है। And secondly, gospel was God's eternal plan. It is not that after man sinned, God was correcting everything, but it was always God's plan A.
और हम इस बात को देखते हैं। दूसरा बात जो मुख्य बात है कि ये किसी मनुष्य सुसमाचार किसी मनुष्य के द्वारा दी गई कल्पना या सलाह नहीं है या कहानी नहीं है मनगढ़ंत, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से प्रारंभ से ही सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर का ये प्राथमिक योजना है। वह है सुसमाचार जिसको उसने यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाया, प्रकट किया है। And third, we have the gospel clearly written down in a document called the Bible. तीसरा हम देखते हैं कि सुसमाचार जो है हमारे पास दस्तावेज के रूप में, लिखित रूप में परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल पर आधारित है। And the fourth thing, that it is about a person, that is a person of Jesus Christ, who is both the Son of Man and Son of God. और इसलिए चौथी बात हम लोग देखते हैं कि ये सुसमाचार हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, जो पूरी तरह से परमेश्वर है और पूरी तरह से मनुष्य है। And the next thing that we have learned about the gospel is in verse 16 and 17 of chapter 1. और अगली बात जो सुसमाचार के विषय में हम सीखते हैं वो रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 16 और 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। Apostle Paul calls gospel the power of God to salvation. प्रेरित पौलुस सुसमाचार को विश्वास करने वाले के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, वो कहता है। Apostle Paul says that gospel has the power to save anyone who believes. प्रेरित पौलुस के कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि सुसमाचार पर जो कोई भी विश्वास करेगा, उस सुसमाचार में इतनी सामर्थ है कि वो उसके जीवन को बचा सकता है। And we know that what we should be saved from, we should be saved from our sins. क्या हम इस बात से अपरिचित नहीं हैं? क्या हम इस बात से परिचित नहीं है कि हम कहाँ से बचाए गए हैं? हमें उन पापों के दंड से परमेश्वर ने हमें बचाया है। Gospel and gospel alone has the power to save us from our sins. इसलिए सुसमाचार ही केवल वो सामर्थ्य है जो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की ओर से हमारे लिए सामर्थ है। And in verse 17, Apostle Paul explains why and how gospel can save us, because it is in the gospel the righteousness of God is revealed. और इसलिए वचन जब 17 में हम आते हैं तो प्रेरित पौलुस वहां पर उस बात को विस्तार रूप से व्याख्या करते हुए कहते हैं कि कैसे परमेश्वर का जो सुसमाचार उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, वो कहते हैं वचन 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। Every other attempt is to be saved through the righteousness of man. हर एक जो प्रयास लोग करते रहते हैं वो मनुष्यों की धार्मिकता के आधारित होता है। Every other religion and every other suggestion is how man can be saved through man's righteousness. और हर एक धर्म और धर्म गुरुओं का और जो प्रक्रियाएं हैं, परंपराएं हैं, वो सब कुछ योजनाएं हैं कैसे मनुष्य का उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है, वो मनुष्यों के द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत कहानियां और मनगढ़ंत योजनाएं हैं। But in the gospel, not man's righteousness, but the righteousness of God is revealed. लेकिन परमेश्वर के वचन में मनुष्यों की धार्मिकता प्रकट नहीं होती है, मनुष्यों की प्लान व योजना प्रकट नहीं होती, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के द्वारा और विश्वास के लिए प्रकट होती है। And because of that, when we believe in the gospel, we receive the righteousness of God. इसलिए मेरे प्यारों से समाचार के विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और वो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट होती है। In Romans chapter 5 verse 1, we read, having been justified through Lord Jesus Christ. रोमियो को 5 अध्याय 1 का 5 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र ठहराए गए।
When we believe in the gospel, we believe in Jesus Christ, and his righteousness is given to us. And that is why Apostle Paul said we are justified by faith through Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग इस बात के विषय में कहते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए वो प्रेरित पौलुस भी इस बात को कहता है कि हमें जो प्रेरिताई जो मिली है वो किसी और के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है। And I was trying to, I was explaining all these things to understand what we read in Hebrews chapter 5:1, having been justified. और ये जो अभी तक जो बात मैं आपको व्याख्या करके विस्तार करके बताना चाह रहा था वो ये था कि इसका मूल अर्थ जो हमारा विषय जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं कि हम उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या पवित्र ठहराए गए। इसका मतलब क्या है? Justified through Jesus Christ means that we have received the righteousness of God, and today we have a righteous standing before God. और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें धार्मिकता मिली है, या यीशु मसीह के द्वारा हमें जो धार्मिकता मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। To understand in another way, the righteousness of Christ is given to us. और दूसरे शब्दों से समझने का प्रयास करें तो इस प्रकार से होगा कि हमें यीशु मसीह की धार्मिकता हमें मिली है। Our righteousness our righteousness cannot be accepted by God. That is why God gave us the righteousness of his son to us. और इस चीज को मनुष्य को और हम सबको समझना है कि मनुष्यों की धार्मिकता परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं ठहरती, इसीलिए उसने अपने पुत्र अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमको दी है। And how did we receive this? और इस धार्मिकता हमें कैसे पाया है? In Romans chapter 4 verse 6, it says that it is apart from works. और जब रोमियो 4:6 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ ये कर्मों से धर्मी ठहराता है। This righteousness of God cannot be attained by our works, but by faith. लेकिन हम इस बात को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि ये जो धार्मिकता हम कर्मों के द्वारा उसको अर्जित नहीं कर सकते, लेकिन विश्वास के द्वारा। And in verse 7 and 8, Apostle Paul writes, what are the blessedness when God gives us his righteousness, or when we are justified? और इसलिए जब वचन 7 में हम पढ़ते हैं कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए, इसका मतलब क्या है? What happens to us when God imputes his righteousness into our lives? हमारे जीवन में जब परमेश्वर अपनी धार्मिकता को उंडेलते हैं तो हमारे जीवन में हमारे साथ क्या होता है? It is very important for us to understand it. Verse 7 and 8 we read. ये बहुत ही आवश्यक है, वचन 7 और 8 हम एक साथ पढ़ें तो उसको हम समझने के लिए। Can you read verse 7 and 8, brother? Yes, और 7 और 8 हम लोग पढ़ेंगे कि धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। Okay, please listen to this carefully. There are three things that happens to us when God gives us his righteousness. ध्यान से सुनिएगा प्रियो, ऐसी वो 3 बातें हैं जब हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। 3 बातें घटित होती हैं, सब लोग अपना ध्यान को दीजिए। First, our lawless deeds are forgiven. सबसे पहले बात होती है जिनके अधर्म क्षमा हुए, मतलब हमारे अधर्म क्षमा हुए। Lawless deeds means we have broken the law. When we break the law, there is a punishment. और जो यहाँ पर लॉलेस लिखा हुआ है, इसका मतलब है जब हम व्यवस्था के नियमों को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं। Even in the world, when we break a law, there is a punishment for that. यदि वर्तमान के समय में यदि हम कोई भी नियम और व्यवस्था का
पालन नहीं करते, उसको तोड़ते हैं, तो उसकी सजा हमें मिलती है। Uh, it is more true when we break the law of God, there is a punishment. उसी के साथ साथ ये भी बात सच है कि जब हम परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, उसके लिए भी हमें सजा मिलती है। But when we believe in the gospel, God gives us His righteousness, then those lawless deeds are forgiven, which means there is no more punishment for our past sins. और इसलिए मेरे प्यारो, जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनके जो, यद्यपि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन भी किया है, सजा के भागीदारी भी है, लेकिन जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो हमारे वो सब अधर्म प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हो जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। We read in the Old Testament when God says, I have thrown your sins back. No, I will, I will forgive and I will, there's not going to be any more punishment for your past sins. और वो जिस प्रकार से पुराने नियम में भी हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को पीछे फेंक दिया है। इसका मतलब मैं उन्हें अब और यहाँ से आगे को स्मरण नहीं रखूंगा, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। Every child of God must understand that God will not punish us for our past sins. हर एक परमेश्वर के संतान को इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु हमारे बीते हुए समय का जो पाप है, उनको प्रति हमें सजा नहीं मिलेगा। God will discipline us for our present sins. वर्तमान के समय में परमेश्वर हमें अनुशासित जरूर करते हैं, but there is no punishment for our sins. लेकिन उन पापों के लिए हमें सजा नहीं है। There is a big difference between punishment and disciplining. अनुशासन में और सजा में, ये दोनों में बहुत बहुत बड़ा अंतर है। The second thing is that our sins are covered. दूसरी बात जो उस भाग में हम लोगों ने देखा था, वो है हमारे पाप ढांपे गए हैं। Which means that God will cover our sins so that our sins will not be exposed again. और इसका मतलब है कि हमारे पाप परमेश्वर के द्वारा ढांपे गए हैं और फिर से वो पाप अब प्रकट नहीं होने वाले। Which means we will never have to encounter our past sins again. इसका मतलब है कि हमारा जो बीता हुआ समय के जो पाप हैं, फिर से व पुनः उनसे मुठभेड़ नहीं होने वाले, उससे फिर मुलाकात नहीं होगी, वो फिर से हमारे सामने नहीं आएंगे। We read in Psalm 103 that God has removed our sins as far as the east is from the west. जिस प्रकार से भजन संहिता 103 का 10 और 11 में हम पढ़ते हैं, तो जहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे पापों को, अपराधों को उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे पापों अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया है। If we are in the east, our sins are in the west. अगर हम मानो जो है पूरब की ओर हैं, तो हमारे पाप पश्चिम की ओर। We will never be able to meet each other because God has removed our sins and God has covered our sins. और हम हमारे जो पाप हैं उनको हम पुनः अब उनका सामना नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन पापों को क्या कर दिया है, ढांप दिया है। And the third thing is the Lord shall impute sin. और तीसरी बात जो उस भाग में हम लोग पढ़ रहे थे, वो है जिससे परमेश्वर पापी ना ठहराए। Let me explain what it is. इस बात का अर्थ क्या है, मैं आपको विस्तार रूप से बताना चाहता हूँ। Which means God will not remember our sins and put that into our account in his present dealings with us. इसका मतलब है कि वर्तमान के समय में परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करेगा, पापी नहीं ठहराएगा। Let me try to explain that with a story. और इस बात को मैं एक कहानी के द्वारा आपको व्याख्या करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। Not a story, a kind of a probable thing that can happen. और कहानी नहीं, मतलब एक ऐसी बात है जो समस्या मान को चलो किसी के साथ घटित हो जाती है। Think that a thief
a thief who is known for his, robbing people, he listened to the gospel and he believed and he became a child of God. और एक चोर है जिसको चोरी करने के लिए, जो लोगों को लूटपाट मचाता था, उत्पात मचाता, उसके लिए जाना जाता था, उसने सुसमाचार को सुना और वो परमेश्वर का संतान बन गया। Not only he became a believer, but he wanted to preach the gospel and he became a servant of God. और केवल इतना ही नहीं कि वो एक साधारण विश्वासी बन, वो दूसरों को सुसमाचार सुनाने का बोझ उसके मन में आया, इसलिए वो प्रभु का एक दास सेवक बन गया। So he'll go from town to town and village to village and preach the gospel. और इसलिए अब वो व्यक्ति जो है शहर से लेकर के शहर तक, गांव गांव जाकर के वो प्रभु का वचन का सुसमाचार सुनाने लगा। Imagine one day he reached your town or your village. आप कल्पना कीजिए कि वो आपके गांव में और आपके शहर में आता है। And it was evening, he came to your house. और वो शाम का समय था, वो आपके घर आते हैं। And you are also happy to receive him and listen to his testimony. और आप भी बहुत ज्यादा आनंदित हैं और उत्साहित हैं आप उसके कहानी को, उसकी गवाही को सुनने के लिए। And since he had to go somewhere the next morning only, you allowed him to stay in your house. क्योंकि उसे अगले सुबह उसे कहीं और जाना है, इसलिए आपने उनको मानो एक रात के रुकने के लिए अपने घर में पनाह दी। So you gave him dinner and you had a prayer and then you showed him where he has to go and sleep. और उसके बाद आपने उन्हें स्वागत करके घर में बिठाया और उनको रात्रि का भोजन के दिया, और भोजन के बाद में फिर आपने प्रार्थना करके उन्हें जहां पर सोना था उस स्थान को उन्हें दिखाया। And after that, what will you do? उसके बाद आप क्या करेंगे? Maybe you will lock all your valuables properly. हो सकता है आप अपनी जो कीमती वस्तुएं हैं जो जहां रखी हुई हैं, आप उनमें ताला डाल दोगे। Why? Because you just want to be safe. क्यों? उसका कारण है कि आप उन्हें चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे। He was a thief before. वो व्यक्ति पहले कौन था? एक चोर था। You are not sure whether he will rob you also. आपको इस बात के बारे में निश्चित पता नहीं है कि वो आपको भी लूट लेगा कि नहीं। Just in case. इस विषय में What did you do? You imputed his past into the present. आपने क्या किया उसके विषय में? उसके बीते हुए काल को उसके वर्तमान समय में क्या कर दिया? ठहरा दिया उसे चोर। You did not forget that he was a robber. आप, इसका मतलब है आप उस बात को नहीं भूले कि वो एक लूटपाट और चोरी करने वाला व्यक्ति था। God will never do that. लेकिन ये हमारी सोच है, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करने वाले। I think that is what it means when the Bible says that Lord shall not impute sin. ये इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल में भी इस बात को कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। When God deals with us presently, he will not bring back our old past into that. जब वर्तमान के समय में परमेश्वर जब हमसे जो वार्तालाप करते हैं, हमारे साथ सहभागिता रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारे बीते हुए पापों को, बीते हुए काल के पापों को लेकर के आएगा सामने। The Bible, we read God saying that I will remember your sins no more. बाइबल इस बात को बताती है कि मैं तुम्हारे पापों को पुनः स्मरण नहीं रखूंगा, नहीं करूंगा। Not that God forgets, केवल इतना ही नहीं, वरन परमेश्वर उन्हें भूल जाते हैं। but he will not remember. He will intentionally, he will not remember our past when he deals with us presently. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ भूल जाएंगे, वरन जानबूझ करके उन पापों को प्रभु स्मरण नहीं करेंगे, वर्तमान में हमारे सामने लेकर के नहीं आएंगे, हमें याद नहीं दिलाएंगे। And that is what it means to be justified or to receive the righteousness of God in our lives. और यही मतलब है परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण करने का। God has dealt with our sins comprehensively. परमेश्वर हमारे पापों से बिना कोई समझौता किए हुए उनके साथ व्यवहार किया है।
no punishment, कोई सजा नहीं, no shaming by exposing us, हमें हमारे पापों को उजागर करके बेइज्जत करने का, लज्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं। and God will not impute our sins, past sins, into his present dealings with us. और परमेश्वर तीसरी बात, हमारे साथ हमारे बीता हुए कल के पापों को वर्तमान के समय में हम पर नहीं थोपेगा। And that is what Apostle Paul meant. He said, having been justified, we have peace with God. और यही बात मेरे प्रिय प्रेरित पौलुस ने कहा कि हम परमेश्वर का धर्म द्वारा, धर्मी ठहरा जाने के द्वारा परमेश्वर के साथ हमें क्या मिला है? शांति मिली है। Now, I want to make some application. If we have peace with God, we need to be at peace with our past. हम एक प्रैक्टिकल बात जो हमारे जीवन के लिए लागू होती है, वो हमें इस बात को सोचना है। अगर हमें परमेश्वर के साथ शांति तो है, तो हमें अतीत के साथ शांति से रहने की जरूरत है। Many believers still struggle with their past. बहुत से विश्वासी आज भी उनके बीते हुए समय के, अतीत के जो पाप किए हैं, उनसे आज भी वो जूझते हैं। Because they have not understood the gospel, or they have not understood the justification that we receive in the gospel. कारण यह है कि उन्होंने सुसमाचार को वास्तविक रूप से नहीं समझा है, उस शांति को, उस धार्मिकता को जो उन्हें मिली है, उसको नहीं समझा है सुसमाचार के क्या है। They still struggle with their past, and their past is influencing their present Christian life. और वो वर्तमान में भी उनके बीते हुए अतीत के पापों के द्वारा वो बहुत ही ज्यादा जूझ रहे हैं, और आज वर्तमान में वो उनका मसीह जीवन को जीने में बड़ी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। Many believers punish themselves when God has already forgiven and no more punishment. आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी गण हैं जो अपने आप को, उनके पापों को याद करके, अतीत के पापों को याद करके अपने आप को सजा देते हैं, इस बात को भूल करके कि परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया है। God doesn't punish them, they punish themselves. परमेश्वर उन्हें सजा नहीं देते, वो अपने आप को सजा देते। And they forget that God has covered their sins, but they are trying to bring it again and again, again and again into their mind. और वो चीज को, इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उन पापों को भुला दिया है, छोड़ दिया है, उनको परमेश्वर भूल गए। लेकिन विश्वासी क्या करते हैं? उनको दोबारा 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 बार बार अपने मन में उनको याद करते रहते, उनको बार बार अपने मन में लाते हैं। And they think that their present life is because of their past sins. और वो ऐसा फाइनली उसका इस प्रकार से निष्कर्ष निकालते हैं कि आज वर्तमान में जो हमारा जीवन है, वो हमारे अतीत के पापों का परिणाम है। My life is like this because I did this past sin. मेरा जीवन अभी ऐसा है क्योंकि मैंने अतीत में ये पाप किया था, ऐसा सोचते हैं। Because I made a wrong decision in the past, that is why my life has become like this. क्योंकि मैंने अतीत में जो है गलत निर्णय लिया है, इसीलिए मेरे ये जो पाप है, ये वर्तमान की परिस्थिति बनी हुई है। Now, once we understand what justification is and what gospel is, we can be at rest with our past. मेरे प्यारो, एक बार जब हम सुसमाचार को समझ जाएंगे, परमेश्वर का उस धार्मिकता को जो उसने हमें ठहराया समझ जाएंगे, हमारे पाप क्षमा हुए, हमारे पाप ढांपे गए हैं, परमेश्वर में पापी ना ठहरे, जब हम इस बात को समझ जाएंगे, हमारा मेल, हमारा शांति परमेश्वर के साथ रहेगी। Dear brothers and sisters, your present life is not because of your past, but in spite of your past. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वर्तमान का आपका जो परिस्थिति है, वर्तमान का आपका जो अवस्था है, वो पाप अतीत में किए हुए पापों का परिणाम नहीं है, वरन उससे हटके, उससे अलग है। God has dealt with your past completely, and you need to leave behind your past and be at peace. इस चीज को आपको अपने मन में गांठ बांध लेना है कि परमेश्वर
ने आपके अतीत के पापों के साथ में उन्होंने उनको दूर कर दिया, उनको हटा दिया है। अब आपको निश्चिंत होकर के परमेश्वर के साथ शांति से, सुकून से रहना। And that is given to us because of Jesus Christ and through faith. और ये अपने हमारे लिए इसलिए दिया गया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विश्वास करने से हमें वो शांति मिलती है, वो क्षमा मिलती है। See, we have peace with God not because of ourselves but because of Jesus Christ. हमारे पास हमें परमेश्वर के साथ शांति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे कारण है, वो केवल प्रभु यीशु मसीह के कारण, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो मिली है। Let me explain this. Many people still think that they have to live a particular way of life to be at peace with God. और बहुत इस बात में आपको इस प्रकार से बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग इस प्रकार का सोच रखते हैं, सब विश्वास करते हैं कि आज हमारे वर्तमान की परिस्थिति जो बनी हुई है वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है। For example, some days, probably we have committed few sins, and then we may say that I don't feel like praying because I've committed so many sins. और उदाहरण के तौर पर मानो तो चलो कुछ दिन पहले या कुछ समय पहले हम लोगों ने पाप किया है, और पाप करने के कारण क्या होता है कि वर्तमान में हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि वो परिस्थिति ऐसी बन गई क्योंकि मैंने वो अतीत में वो पाप किया था। So I don't feel like praying today because I didn't lead a good life today. और इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैंने वो पाप कर दिया था, इसलिए मुझे आज प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ऐसी अगुवाई नहीं होती क्योंकि मैंने ऐसा पाप किया था अतीत में। And some other days we think that okay, today I had a good life, so I have and I would like to pray. और कभी कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ओके आज मैंने अच्छा जीवन बिताया है और पिछला समय मेरा अच्छा गुजरा, इसलिए आज मैं प्रार्थना करूंगा। Because we think that it is through our life that we have peace with God. हम क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा वो धार्मिकता हमें मिलती है। But we need to understand we have peace with God through Lord Jesus Christ. लेकिन इस चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है साफ साफ रीति से कि जो धार्मिकता हमें मिली है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Even if you had a good life in a day, still you have to go only through Lord Jesus Christ. And even if you have committed many sins that day, still you can go through Lord Jesus Christ to our God. यद्यपि आपका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है अभी और आप शांति से हैं, तो भी आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के साथ चलना है। यदि आपके जीवन में आपको लगता है मैंने कोई गलती, कोई पाप कर दिया है, तो भी आपको यीशु मसीह के साथ साथ चलना है। And not only that, if we have peace with God, we need to be peace with our past, but we need to be peace with other justified believers. इसलिए मेरे प्यारो, अगर हम हमारे पापों के अनुसार उनसे क्षमा हुए, उनसे दूर होकर रहते हैं, तो हमारा वर्तमान में विश्वासियों के साथ भी उसी अन्य न्याय संगत के साथ शांति में रहने की जरूरत है। Since we don't have time, let me put it this way. Let us not punish other believers for their past sins because God will not punish them. और मैं इस बात हमारे पास समय कम होने के कारण मैं इस बात को इस प्रकार से रखना चाहता हूँ, आइए हम दूसरे विश्वासियों को उनके अतीत के पापों के द्वारा उनको लज्जत ना करें, उनको सजा ना दें। And let us not bring out their past again and again. आइए हम उसके जो बीते हुए अतीत के पापों को हम दोबारा और दोबारा और बार बार उनको उनके सामने ना लाएं, उनको याद ना दिलाएं। If a person, he must have had a very bad past and he's a believer now, probably he is preaching. और हो सकता है कि एक विश्वासी जिसके अतीत में जो है पाप रहे हों या उसने किया हो और उनको आप जानते हो और वो भी प्रचार कर रहे हों। And some believers may say, oh, now he is a good man, but in the past, what all things he was doing, let's not do that. और आइए इस प्रकार से हम लोग देखें, इस बात को जानेंगे कि मानो हम लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति, अरे ऐसा पाप किया था इसने, अरे ये तो
वर्तमान उसका अतीत कैसा है मैं जानता हूं इसको। आइए हम ऐसा ना करें। We have peace with God. We need to be peace with our past, and we need to allow other believers to have peace and not disturb their peace. और अगर हमें परमेश्वर के साथ शांति है तो आइए हम जो अन्य न्याय संगत विश्वासी लोगों के साथ भी शांति में रहने की जरूरत है, हम उनके शांति को भंग ना करें। I think our time is up. The next is we have two more things. Maybe God willing, at any point of time, if God allows, we will study that. Three privileges of a believer is that we have peace with God, we have access into this grace, and we have the hope of the glory of God. आज हमने तीन वो अवसरों के विषय में आज हम लोगों ने सोचा। प्रभु के अनुग्रह से हमें परमेश्वर के साथ शांति है, हमें परमेश्वर के साथ में प्रिविलेजेस, पीस विद गॉड, एंड सेकंड वन अंकल, Access into the grace, और अनुग्रह तक हमारी पहुंच हुई है, और and तीसरा and hope of the glory of God. और महिमा की आशा, परमेश्वर की महिमा की आशा हमारे जीवन में है। ये तीन बातें आज हम लोगों ने सीखी है। Our past, present, and future is transformed through the gospel. हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों जो काल हैं वो परिवर्तित हो गए हैं सुसमाचार के द्वारा। And these are not instructions, but these are essential knowledge that we need to have and we need to act upon. और ये हमारे लिए दिए गए कोई निर्देश नहीं है, वरन ये वास्तविक रूप से वो सच्चाई है जिसको हमने सुसमाचार में विश्वास किया है, उनका परिपालन करना है। May God, through His Spirit, continue to speak to us, and may it be a blessing to your life and to my life. और परमेश्वर उसकी आत्मा के जरिए हम सबसे बातें करें, और ये बातें आज जो हमने सीखी हैं हमारे प्रायोगिक जीवन के लिए आशीष का कारण बने। May God's name be glorified, and thank you all for your patience. परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़े ही धीरज से आप सुनते रहे। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद।